and I have 99.1 percentile overall with 99.7 in quants. So And all of 99 that plus credit percentile, goes to guys. Rahul sir itself. Yes, all that credit goes to. मेरे लिए सर बिगेस्ट हर्डल जो थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दैट वाज डीआईएलआर का वो फेज जब एक भी सेट क्रैक नहीं होता था. आई यूज्ड टू स्कोर इन नेगेटिव बिकॉज आई यूज्ड टू पुट माय गेस वर्क इन टू सेट्स. ऐसे मार्क्स हुए हैं. Then another depressing phase was when I was not able to score even beyond 65. All right, guys. So today we have Ayush. So Ayush, first of all, heartiest congratulations. तो बताओ जरा क्या स्कोर आया, कितना आपका परसेंटाइल रहा, एंड हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम वेयर टू वेयर? First of all, thanks a lot, sir. Thanks a lot for your guidance throughout, and thanks a lot for bringing me on the platform as well to share my journey. So, hi guys, just giving some basic information about myself. I'm a third year undergraduate student at Delhi University, and this year I took CAT and I have 99.1 percentile overall with 99.7 in quants. And all of that plus credit percentile, goes guys. to Rahul sir itself. Yes, all that credit goes to. तो गाइज 99 प्लस परसेंटाइल जो आपका ड्रीम होता है स्पेसिफिकली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, आप भी आओगे एंड यू विल बी एमिंग फॉर दैट, एंड आयुष हैज क्रैक्ड इट. तो जानते हैं आयुष व्हाट प्लेड द मेजर रोल फॉर यू. मैं बता देता हूँ कि आयुष की क्वांट पहले से ही अच्छी थी, है ना. तो ये ही इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट, गिविंग द क्रेडिट. ये खुद ही अच्छा करता था क्वांट में शुरू से ही, राइट. तो आयुष का आप क्या फॉलो करते थे, क्या आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए, एंड व्हाट पार्ट यू फॉलोड फ्रॉम एमबीए वाला? Definitely. So first things first, from MBA wala I got major help from the foundation course. Now this foundation course is also on YouTube and also on the physics wala website or application. So guys, the foundation course is very important. ये तुम्हारी सारी basics build कर देगा. And once you're done with foundation course, even if तुम खुद से practice करते हो, you can clear the CAT. Trust me, I've done that. Now, in case you're not able to do, then you should look forward to advanced programs by them. That's the thing. इसके बाद जब you're prepared, the next thing is test taking, which is more than 50% of your preparation according to me. It's very important to start taking tests as soon as you are prepared. Even during your preparation, it's very important because जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा बेस्ट क्या कर सकते हो. तो टेस्ट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक्स अच्छे खासे दो. लास्ट के टाइम पे जब एग्जाम से कुछ दिन पहले हो 40-50 मॉक्स टोटल होने चाहिए लास्ट के 2 months में. So for me, mock taking is very important. And one secret I'll tell you, there's a secret that helped me crack CAT, and that is to minimize your silly errors and maximize your attempts. Absolutely. Because silly errors हटा दोगे तो 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे. Exactly. हाँ. और ये चीज भी रियलाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना आयुष की. सिली मार्क्स में एक -1 होता है और एक +3, तो 4 नंबर का फर्क पड़ता है. और 4 नंबर कितनी परसेंटाइल ला सकता है ये समझना बहुत जरूरी है, राइट. For me it like affected मेरा ये 0.3 का डिफरेंस हो गया. I'll say honestly, because a question that the answer was 20:36, I marked 4:9, and options में 5:9 was also available. ये तो मिक्सचर का क्वेश्चन था, मुझे याद है मिक्सचर का क्वेश्चन. Slot 1 question, yes, that costed me 0.3 percentile. हाँ, रिमूवल रिप्लेसमेंट का था ये, रिमूवल रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था ये, राइट. हाँ, this question has been coming in CAT for the past 2-3 years. इसकी मैंने ये भी बना रखी है मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस का. मेरा वो एपिसोड 4 है इस साल का. तो गाइस देखो ऐसा तो होता है. और अच्छा आयुष, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, इनका एक मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट लगातार खराब होने लगते हैं, तो ये लोग काफी डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं. स्पेसिफिकली जब आप इतने मॉक टेस्ट देते हैं 30-40, तो फ्लक्चुएशंस तो आता ही है, जनरल है, राइट. आयुष इज 99 परसेंटाइल, राइट, सिटिंग ओवर हियर. ही आल्सो हैड फ्लक्चुएशंस. आयुष, आपका मिनिमल स्कोर कितना आया था जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे? यस, मिनिमम मैंने 54 भी स्कोर किए हैं, एंड उसमें परसेंटाइल 89 भी थी. And it's not the mock test, मतलब scorers का percentile, it's predicted percentile. Some coachings provide it. Yeah, so हाँ, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स तो PYQ वाला है. जैसे आपने ही मेरे को अभी बताया जब हम कॉल पे थे कि आप जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगा रहे थे, तो आप उनको एज अ मॉक टेस्ट लगा रहे थे, है ना. हाँ, it's very important that guys, past year paper you should not say कि ये past year paper है, क्योंकि जब तक उसको तुम यूनिक ट्रीट करोगे तब तक टफ लगेगा. What you should do, you should take it as a mock. You have a mock test schedule, you take 3 mocks, 4th one should be a past year paper. That हो mock की तरह दो and mock की तरह analyze करो. It will be very similar because these days I'll say physics wala and even there are other players in the market as well, of course. We cannot deny that. The mock tests are very close to the actual papers, and we should thank our educators. We should thank our educators who are right there, Rahul sir and others on the physics wala channel, who are like working their level best to create papers that match the level of actual paper. That's been very important for me.
मेरे ख्याल से ना Definitely. ऐसा होता है कि जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से पेपर लगाते हो, इवन यू टेक एनी प्लेटफॉर्म, तो उसमें क्या होता है कि इट्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द राइट परसेंटाइल ऑनेस्टली, क्योंकि क्या होता है कि आपको अपना फ्लक्चुएशन पता नहीं चलता। आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपका रॉ स्कोर आया लेटर से 74, अगला मॉक टेस्ट लगाया उसमें आपका रॉ स्कोर आ गया लेटर से 69। आपको लगता है कि यार मैंने तो पेपर खराब कर दिया, पर वो पेपर के लेवल की डिफिकल्टी थी। तो इसलिए मैं तो अभी भी एडवाइस करता हूँ कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है पिछले कुछ साल के, क्योंकि उसके रॉ स्कोर से आप एग्जैक्टली परसेंटाइल पता लगा सकते हो कि रियल कैट में कितनी आती, क्योंकि वो पिछले साल की परसेंटाइल वर्सेस रॉ स्कोर आउट स्केल स्कोर आउट हो चुका है। तो अगर जब आपका पता चल जाए कि यार लास्ट ईयर 73 नंबर पे इतनी परसेंटाइल आई थी, अब आपने मॉक लगाया, आपका 73 नंबर आया, तो नाउ वी हैव डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस आउट देयर। अब आप जब 2024 में आप 2023 का मॉक लगा रहे होगे, 2023 का टेस्ट लगा रहे होगे एज अ मॉक टेस्ट, आप 2023 की जब एनालिसिस वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे इस स्लॉट में इतने नंबर थे तो लास्ट ईयर कितनी परसेंटाइल हिट हुई है। तो आई वुड से तो बहुत बढ़िया चीज होती है। तो आयुष, was there any hindrance which you faced in your entire journey? सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या था? मैं आपको बता दूं दोस्तों, आयुष ने जून में स्टार्ट की थी, और अगर नवंबर छोड़ दो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आयुष सिर्फ 4 घंटे सोया। आयुष इज एक्टिवली वर्किंग फॉर हिज वेंचर, ही इज वर्किंग ऑन, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। तो और कॉलेज स्टूडेंट भी है, फाइनल ईयर, राइट। तो वो पहले कॉलेज जाता था, कॉलेज के बाद ही यूज्ड टू वर्क फॉर ए स्टार्टअप, एंड एट द एंड वो रात को 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था, 3-4 बजे तक पढ़ता था, और उसके बाद वो 4-5 घंटे सो के वापस पढ़ना स्टार्ट कर देता था। आयुष, कितने महीने चली है कहानी? सर ये कहानी 3-4 मंथ्स चली है। कभी कभी ऐसा होता था DILR सेक्शन में नींद आती थी, बिकॉज उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है जो सेट क्रैक नहीं होता है। तो मेरे लिए सर बिगेस्ट हर्डल जो थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दैट वाज DILR का वो फेज जब एक भी सेट क्रैक नहीं होता था। आई यूज्ड टू स्कोर इन नेगेटिव बिकॉज आई यूज्ड टू पुट माय गेस वर्क इन 2 सेट्स। ऐसे मॉक्स हुए हैं। Then another depressing phase was when I was not able to score even beyond 65. I was stuck in 60, 62, 56. That time I thought that I have done, I mean, मैंने कुछ गलती की है। मैंने 3 बोर्ड्स पे एक साथ पैर रखा है, स्टार्टअप, कॉलेज एंड कैट। I think I mistook it, अब नहीं होगा। But then some holidays came because of air pollution in Delhi. That was my golden phase. In those holidays, I even took 2 mocks on a day because I had a surplus. So I thought, let's try this. किसी को तो फायदा हुआ दिल्ली के पॉल्यूशन से। Exactly, I benefited a lot because college was closed and I also took off my responsibilities of my venture. So yes, that's how I curated this beautiful journey. My business partner also helped me a lot, like a big brother. And of course, inspiration from mentors like yourself was like cherry on the. It's all your efforts. I'll say 30% is mentors, 70% is the dedication and consistency you guys put in. Because without the dedication and consistency नहीं होता. Like you yourself just told अभी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने 3 बोर्ड में एक साथ पैर रख दिया, होगा कि नहीं होगा। बट उस पॉइंट को क्रॉस करके जाना और वापस अगले दिन किताबें खोलना या मॉक खोलना एंड अगेन डूइंग दैट टेक्स गट्स। क्योंकि रात को आप सही थॉट्स के साथ सोए नहीं हो, पेपर खराब हुआ है, अगले दिन वापस रीस्टार्ट करना, नहीं यार होगा, वो जो आपका जो एक मेंटालिटी है, नहीं यार हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आयुष, जल्दी मिलते हैं फिर, राइट। यहाँ पे बुलाते हैं आपको, GDPI का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं, जनवरी ऑलरेडी हाफ डन, है ना। और लाइव में जो one last thing I'll say as a secret sauce that I said for preparation, guys, minimize your silly errors, because if you are someone who scored 97 this year, I am damn sure you did 4 silly errors. वो नहीं करते तो you could have 99. Very important, guys, very important. Please don't ignore it. Second is have a very maximist approach in your attempt. If you think कि मैं 7 करके आऊँगा 80 percentile आएगा, not gonna work. Very honestly. So have a maximist approach for attempting, and then of course you have great mentors at Physics Wala, so your preparation is set. चलो आयुष, फिर जल्दी मिलते हैं, बातें करेंगे खूब सारी, ढेर सारी, है ना। हो गया ऑनलाइन पे तो लाइव मिलेंगे फिर अब, ठीक है। Definitely, sir. Thanks a lot for bringing on the platform. Congratulations, sir. Thank you. Thanks again. Okay. Thanks a lot.